I'm Kumar Avinav, and you're watching Clad Gurukul's YouTube channel. This is our editorial explainer series where I take up certain articles from the daily newspaper and try to break them down for you. So today I'm going to do the same. I have picked up two articles which I will be discussing in the class, and with that we'll start the class with a positive message. Let's see what that is. It is 7th September 2021, and I have editorials from the Hindu newspaper specifically today. Just keep going. Everybody gets better if they keep at it. So it's very simple. It's very simple. We put that much effort or that much thinking into it, but the reality is very simple. You just keep on working. Your work will at one point of time compound and give you some results or give you even massive results at times. Now there are other factors at play, but one thing to ensure that you will get some result is just keep doing whatever is needed, keep doing whatever you are doing. You cannot stop and then wait for the result to just accrue. It does not happen ever. And with that, let's start today's discussion. The two articles that I picked up is firstly a Taliban-led Afghanistan and Chinese conundrum from page number 6 of the Hindu editorials, and secondly a spirit of federalism lies in consultation, again page number 7 from the Hindu editorials. Okay, so both of these are from the Hindu. No Indian Express editorial I have picked today. Just that there was none which needed a discussion. We had already discussed all of the issues which were there, so I don't find any new topics. So I have just limited the number of topics today, but we'll do a detailed analysis of these two articles at least. So let's just start with the first one, which is a Taliban-led Afghanistan and the Chinese conundrum. The word conundrum means the dilemma, the confusion that is there, or the dilemma that is there. So what the headline only suggests, okay, it is talking about the Taliban-led Afghanistan, the recently formed government of Afghanistan, and how it is creating a kind of conundrum, a kind of dilemma, a kind of confusion for the Chinese authorities or for the China's country. It further states that the US move of vacating Afghanistan, the US recently have decided to vacate Afghanistan to call off its troops from Afghanistan. And it is the same nation which is very vital for the BRI, which is also known as the Belt and Road Initiative of China. Belt and Road Initiative, we all know primarily what it is, but we will discuss the Belt and Road Initiative in detail as well in the today's class. Now, the author here is coming up with this idea that actually the US step to vacate Afghanistan is not going to be beneficial for Beijing or that is China in a long run. He is going to argue in furtherance of the point that it's actually going to affect or is actually going to affect the Chinese economy in a negative way. The eviction or simply the withdrawal of US troops from Afghanistan. This article is written by Nilanjan Banik and Guido Koje. So let's just start or begin with the start of the article. Firstly, it counts to us that what are the tragedies that Afghanistan or the people of Afghanistan, the citizens, are facing in the country. अगर हम उस country की बात करें तो हमें पता है कि obviously with the advent of Taliban जो first चीज़ होने वाली है that is जो human rights से उनके बहुत सारे violation आपको देखने को मिलेंगे. Obviously अगर country अगर terrorist organization चला रहा है तो आप समझ सकते हैं बाकी सारी चीज़ें जो हो सकती है terrorist activities बढ़ेगी. Women right को लेके बहुत ज़्यादा concerned नहीं है Afghanistan. They don't really care about it. So that is another fear. They are not also concerned with secular, the idea of democratic ideas, democratic ideals, or the idea of secularism because they are not going to follow that kind of a notion. So basically, this country is going to come up with a lot of issues, a lot of conflicts in the longer run for other nations as well, for the surrounding nation. But at the same time, the people there also are facing a lot of problems. We have seen that from 2001, after the end of Afghanistan regime for the first time, when the US force entered the country of Afghanistan, they were at least able to manage or at least contain the terrorism activity, and they were also able to propel the economic development of the country. Now, it is not for me to say that the country has not or the country has become developed. The country is still underdeveloped. The country is still developing in a very slow pace. So, US didn't help that much. But what US did rather was to control the terrorism and control the groups like Taliban to coming into main picture. But that has become the reality now. If we talk about the country as Afghanistan, the main economy driver or the driver of the economy there is opium trade, which is very surprising to know that a country in today's world is living on trading a thing which is considered as drugs in most of the places in the world.
ruled by tribal leaders. The leaders that rule Afghanistan currently, the Talibani leaders, they are not really educated that much or not really have the concept of modern ideas or anything that is dynamic in nature. They have no idea about it. They are very orthodox and they believe in traditional values and goals. The new normal is bound to govern by instability. We know that the current condition and with Taliban ruling the country, there needs or there is going to be a lot of instability in the region. Fighting groups will emerge. Even other terrorist organization can come up into picture. So the ultimate result, what the author is expecting here is boom, gloom, and doom. This country might get a lot of recognition in the short time. It might even gain something economically or politically, but then the ultimate reality or the fate of this is going to be dooming or damning only or doom only. Then the author comes to the point whether the step taken by United States is a good thing. So he believed the United States did the smart thing. You also remember a survey done by Brown University where they came up with the idea that the US has spent around more than 3 trillion in helping or aiding the country of Afghanistan, but they were able to or they were not able to do that much different for the country. They were not able to create that much difference for the people there. So only one thing that happened in that regard is that United States faced or basically suffered a lot of losses in that country, similar to what happened in Vietnam. If you remember our discussion where we discussed the issue with how the current situation in Afghanistan can be compared with Saigon. There also a similar kind of thing happened where US had to call out its troops, and after that, that country was again fall to the same kind of predicament than it was supposed to be. Now, thirdly, the third point that the author raises here, that if we focus on just the aid and assistance that US gave to Afghanistan, जितनी भी इसने आज तक पैसे इन्वेस्ट किए अफगानिस्तान में अपनी ट्रूप्स मेंटेन किए, इतना ज़्यादा 3 ट्रिलियन के अराउंड अगर पैसा खर्च किया है, उसके बदले में अगर हम देखें तो उनको क्या मिला, तो अफगानिस्तान की इकोनॉमी उससे कोई फ्लरिश नहीं हुई. नोबडी कैन से कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी जो है वो उससे बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में चली गई है. और अगर हम वहाँ की पॉपुलेशन की देखें तो दे आर स्टिल लिविंग अंडर 90% और ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज स्टिल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, विच ऑल्सो tells us or gives us an idea ki how the country is faring on economic platform. Just give me 1 second, guys. There is some problem with the device. Just give me 1 second. Let me just fix it first. Yeah. So 90% of its population are still living under the poverty line, which is less than $2 a day. So if we take that as a parameter, we come to know कि यूएस का इतना सारा सपोर्ट अभी तक अफगानिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बदलाव लेके नहीं आ पाया है. अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट के इस टॉपिक में, क्योंकि ऑथर यहाँ पे यूएस के स्टेप के बारे में या फिर यूएस पे इम्पैक्ट की बात नहीं कर रहे. ऑथर यहाँ कह रहा है कि कैसे ये पूरा का पूरा जो अभी सिचुएशन बन के खड़ा हुआ है वो हाउ इट विल इम्पैक्ट चाइना और हाउ चाइनीज इंटरेस्ट्स आर आल्सो इंटरलिंक्ड टू ऑल ऑफ दिस. तो ऑथर पहले स्टार्ट करता है कि इट इज परसीव, देयर इज अ परसेप्शन इन द सोसाइटी कि दिस इज विक्ट्री ऑफ द चाइनीज डिप्लोमेसी. चाइना की जीत हुई है, चाइना ने फोर्स कर दिया और चाइना के लिए अब और ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि यूएस वहां नहीं रहेगा. तो चाइना बीइंग अ नेबरिंग कंट्री टू अफगानिस्तान will have the maximum say in the country, will have the maximum influence over the region, and it is also perceived as a debacle for United States. It is perceived as debacle as in United States have lost the war, or it's somehow that United States has done a wrong thing by calling out its troops. Now, in particular, Chinese needs to be happy. There is a reason also for Chinese side to be this much happy, and that is that Afghanistan, even though is riddled with terrorism and other ideas which are not really appealing, but it has its own possession of rare metals. The country of Afghanistan is heavy or heavy rich in rare metals, and that technology or that particular resources can be exploited by the Chinese party because they have the technology to excavate them. They can pull out or they can dug out these rare metals and then can help their economy as well as the Afghanistan economy to grow. So that is one point which is also perceived as a good thing for China. And for that reason only, we can see that China or the engagement of China with Taliban is going up day by day. They have been constant talks with the Taliban side, so they don't want to lose any track of it. They are suffering from a kind of FOMO here. They don't want to
let any other party become dominant there. And so we can see that even in the peace talk, China is a concerning party. Even in other talks, even the diplomatic talks that Afghanistan is having or Taliban is having, चाइना वहाँ हर जगह पे आपको दिख रहा है। और उसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है कि अगर चाइना को अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कंप्लीट करना है तो उनको ये करना होगा, उनको तालिबान की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान से भी उनका बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप उनको करना होगा इफ दे वांट दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव टू गेट कंप्लीटेड। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नेक्सस बिटवीन दीज टू। अगर हम बात करें रोड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की और फिर तालिबान की, तो इन दोनों में कैसे रिलेशन है? तो पहली चीज तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करा जा चुका है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने। चाइना ने बहुत ज्यादा पैसे इसमें बहुत सारा डाल चुके हैं ऑलरेडी, जितना अभी तक इन्वेस्टमेंट हुआ है, जितना अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। और अब अगर इसको वो लंबे टाइम तक चलाते नहीं है तो वो इससे जो पैसा लगाए हैं वो उसका रीपेमेंट नहीं ले सकते, उससे वो कुछ कमा नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट एक रोड बनाती है, उस पर एक टोल टैक्स लेती है। गवर्नमेंट को रोड बनाने में हो सकता है 5 करोड़, 10 करोड़, 500 करोड़ रुपए लगे, बट वो 500 करोड़ रुपए उनके तभी वापस होंगे जब उस टोल टैक्स का लंबे टाइम तक उपयोग करेंगे और टोल टैक्स से जो टोल आ रहा है उसको गवर्नमेंट उसकी जगह पे बैलेंस ऑफ करते जाएंगे, उसकी जगह पे उसको आई मीन जस्ट रीसेटल करते जाएंगे। तो फॉर दैट यू नीड योर इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी इन operational condition for a longer amount of time, and that is one of the requirement. And so China is automatically connected to the whole idea कि उनको जहां जहां अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लगाए हैं वहां पे काम लंबे टाइम तक हो और उनका लंबे टाइम तक उपयोग होता रहे, कि इनको पास पैसा आता रहे। अब ऐसे प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम ये है कि स्पेंडिंग इज इजी। Spending is easy because you have your own resources, you have your currency, and if you are the government, you can spend as much or you can invest as much as you want in any infrastructure. But the problem arises when you want to get back the money, when you have to then accrue the profits or you have to accrue the income or the revenue that you have generated from that infrastructure, then it becomes tricky. तो द अमाउंट ऑफ ट्रेड, जितना ट्रेड चाहिए इस सिल्क रोड को, ये न्यू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जितना ट्रेड चाहिए, वो ट्रेड लंबे टाइम तक होना चाहिए और मैसिव होना चाहिए, तभी जाके चाइना को इस पूरे के पूरे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से कोई फायदा मिलेगा। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, मुझे लगता है यहाँ पे बताना जरूरी होगा। तो चाइना ने दुनिया भर के अलग अलग पार्ट्स को अपने से डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए उसने हर जगह पे रोड्स बना रहे हैं, वो बहुत सारे चैनल्स बना रहे हैं। अब ये रोड में कहीं कहीं रोड भी है, कहीं कहीं मैरीटाइम लाइंस भी है, मतलब ओशन से भी जा रहे हैं रास्ते, बट वो कनेक्शन करना चाह रहा है अक्रॉस द ग्लोब हर एक कंट्री से अपना डायरेक्ट। उससे होगा ये कि इसके जो लॉजिस्टिक चेन है वो इंप्रूव होंगे, वो अपने सामान को कहीं भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है, या फिर वो अपनी बिजनेसेस को किसी भी और जगह पे ऑपरेट करके वहां से सामान बनवा के अपने कंट्री में मंगवा सकता है। तो ये चाइना का लॉन्ग टर्म प्लान है जो ये अचीव करना चाहता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। बट अगर वो लॉन्ग टर्म प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर उसने डेवलप कर ली और फिर उस पे से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवा ही नहीं पा रहा है, उस पे से कोई ट्रेड हो ही नहीं रहा है, देन इट विल जस्ट बी अ लाइबिलिटी ऑन द चाइनीज साइड। ये बस लाइबिलिटी की तरह हो जाएगा, इससे कोई प्रॉफिट या फिर इससे कोई रेवेन्यू जनरेट वो नहीं कर पाएंगे। अब ऑथर आता है कि चाइना के साथ दिक्कत यहाँ क्यों होगी। ये बात को ले जाने के लिए ऑथर सबसे पहले हमें समझाते हैं कि कैसे चाइना का ये प्लान अभी तक काम कर रहा है। तो चाइना ने अभी तक भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बहुत सारे नेशन में ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करी है उसके अंडर, बट वो सारी जो जगहों पे करा है वो सारे के सारे नेशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, एक पाकिस्तान को छोड़ के ज्यादातर साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। तो ऑथर का पहले पॉइंट ये है कि कैसे साउथ ईस्ट एशियन नेशन में और अफ्रीकन रीजन में भी चाइना का ये प्लान काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, उन्हें प्रॉफिट भी मिलने की उम्मीद है। But it is not going to be the same if we talk about Afghanistan and Pakistan. So let's first look at the context of Southeast Asia and Africa, how the Chinese investment strategy currently is working out. So according to the author, firstly we need to know that the Southeast Asian nation, the cost of production is very low there. So firstly let's look at the Southeast Asian nation की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से उसमें नेशन है। They are the countries in ASEAN, ASEAN जो ग्रुप है उसके जो भी कंट्रीज है वो साउथ ईस्ट एशियन नेशन के कंट्रीज है। ब्रुनेई हो गया, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर एंड वियतनाम। इन सारी कंट्रीज में, वियतनाम में, मलेशिया में, देन आपको म्यांमार में, देन आपको इंडोनेशिया में, ये 4 जगहों पे चाइना ऑलरेडी अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत सारे कर रखा है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रखा है। सो
क्यों कर रखा है? क्योंकि वहां पे उसको पता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है। अब जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो एक चाइनीज कंपनी जाके अपनी कंपनी का ऑपरेशन या फिर फैक्ट्री जो है वो लगा देगी मलेशिया में, और मलेशिया में उसको क्योंकि लो कॉस्ट पे लेबर मिल जा रहा है, वहां पे उसका प्रोडक्शन बहुत ही ईजी पड़ेगा, रॉ मटेरियल सस्ता है, लेबर सस्ते हैं, तो उसका हर यूनिट बनाने का जो कॉस्ट आएगा वो कम आएगा। तो उस हिसाब से वहां पे वो पैसा बना रही है। तो अपनी बहुत सारी कंपनी को उन्होंने मलेशिया शिफ्ट कर दिया है, बहुत सारी कंपनी को उन्होंने म्यांमार शिफ्ट कर दिया, बहुत सारी कंट्री को उन्होंने अलग अलग नेशन में शिफ्ट कर दिया। अब इन सारी रीजन में इन्वेस्ट करने का मतलब ये भी है कि ये एक बिगर मार्केट है, जो भी साउथ एशियन नेशन है वो बिगर मार्केट है, बहुत ज्यादा पॉपुलस मार्केट है। पॉपुलेशन इज अ वेरी बिग पॉइंट हियर। जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज्यादा आपके पास कंज्यूमर है, उतना बड़ा आपका मार्केट है। तो ये सारे एशियन रीजन जो है इसमें बहुत बड़ा मार्केट है चाइना के पास। और चाइना यहाँ पे इन्वेस्ट करने से दो चीजें इंश्योर कर रहा है कि एक तो बड़ा मार्केट है तो उसकी ज्यादा सामान बिकेंगे, ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी तो अल्टीमेट इनका गोल है ही, बट एट द सेम टाइम इससे यूनिफॉर्म रीजनल डेवलपमेंट होगा। जो हमारा एरिया का डेवलपमेंट है वो यूनिफॉर्म होगा। अब जैसे मलेशिया, अब वो पुअर कंट्री अगर है और उसमें जाके चाइना अपने इन्वेस्टमेंट, अपनी फैक्ट्रीज, अपनी कंपनीज लगा रहा है, तो एक पॉइंट के बाद मलेशिया भी फिर डेवलप्ड कंट्री होगा या इन लाइन विथ अदर नेशन होगा इस रीजन में। तो इससे यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी हमारे रीजनल डेवलपमेंट में। थर्ड चीज ये है कि चाइनीज फर्म इससे अपना प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स को भी इवेड करते हैं। मान के चलिए उनकी कंट्री में किसी चीज पे बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करने पे उस पे चार्जेस है। जैसे अगर आप चाइना में वाइन बना के एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको 50% एक्सपोर्ट चार्ज देना होगा, एक्सपोर्ट सेस देना होगा। अब वहां पे अगर मलेशिया में वाइन बनाते हैं एक चाइनीज कंपनी, वहां पे मलेशिया में जस्ट जो एक्सपोर्ट चार्ज है वो 5% है, तो इनको 45% का मैसिव डिस्काउंट मिल रहा है ऑन चार्जेस जो इनको देना पड़ता है अपनी कंट्री में। तो ये प्रोटेक्शनिस्ट मेजर है जो चाइना अपने लिए लगा के रखता है। अब जैसे चाइना के पास मान के चलिए उत्पादन जो है या फिर प्रोडक्शन जो है कॉटन का बहुत कम होता है, मान के चलिए, आई एम नॉट सेइंग कि होता है। अब अगर कोई कॉटन का रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहा है तो चाइनीज गवर्नमेंट प्रोटेक्शन करते हुए अपने लोकल मार्केट का, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर लोकल मार्केट, जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो क्या करेंगी, वो उस पर ऐसे लॉज लगाएंगी कि उसका ज्यादा एक्सपोर्ट ना हो सके, कि यहाँ पे कॉटन ज्यादा से ज्यादा अपने कंट्री में रहे, ज्यादा उसका एक्सपोर्ट ना हो सके। और उसके लिए वो क्या कर सकती है, तो एक्सपोर्ट पे वो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के चार्ज डाल देगी। अब जब वो चार्ज डाल दी है एक्सपोर्ट पे तो ऑटोमेटिकली यहाँ के जो लोग हैं वो बना के कॉटन एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे। बट दूसरा ऑप्शन ये होगा ऐसी कंपनियों के लिए कि वो अपनी कंपनी को वहां से शिफ्ट करके मलेशिया या कहीं और ले जाए, या या ब्रुनेई ले जाए या लेओस ले जाए, क्योंकि वहां पे जाने के बाद वहां जो सेस या फिर जो एक्सपोर्ट चार्ज है वो कम है, तो वहां जाके वो रॉ मटेरियल कॉटन ले और उसको एक्सपोर्ट करे और उनको चार्जेस बहुत कम देना पड़े। तो इस तरीके से भी चाइना के लिए एक लॉन्ग टर्म में फायदेमंद मेजर था। एंड देन अल्टीमेटली इन्वेस्टिंग इन अफ्रीका एंड एशिया हैज आल्सो रिड्यूस सम ऑफ द चाइनाज एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब बात क्या है कि अगर आप फैक्ट्री अपनी कंट्री में खोल रहे हो, अगर आप फैक्ट्री अपनी कंट्री में बना रहे हो, तो ऑब्वियसली उसमें आपको ज्यादा चार्जेस लगने जा रहे हैं, उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी का भी करना होगा, सब कुछ का करना होगा, जो ओवरऑल चाइना की इलेक्ट्रिसिटी जो डिपार्टमेंट है उस पर एक बर्डन की तरह आएगा। बट जब आप बाहर की कंट्री में अपनी फैक्ट्रीज ऑपरेट कर रहे हो तो उस कंट्री का नेट जो एनर्जी इमिशन है उस पर हम बात करेंगे फिर हमको। जैसे फैक्ट्रीज है, अब फैक्ट्रीज यहाँ है तो उनका जो इमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है, जो भी ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन है, वो इंडिया में आ रहा है। बट अगर हम अपनी कंपनी को, इंडियन होते हुए हम अपनी कंपनी को इंडोनेशिया में लगाएं, तो हमें एटलीस्ट इस बात का तो नहीं झेलना पड़ेगा कि हमारे कारण से हमारा कंट्री पोल्यूटेड हो रहा है या फिर वहां पे हम ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी देखा जाए तो ये जो स्टेप है, ये जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है इनका, ये काफी अच्छा रहा है टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट अब ये मुद्दा उठता है कि अगर इनको अपना ये कंप्लीट करना है इस स्ट्रैटेजी को, तो इनको अफगानिस्तान को भी इसी तरीके से ट्रीट करना होगा, ऐसे ही एक फोल्ड में लाना होगा। तो क्या वो पॉसिबल है, इसकी बात करेंगे हम लोग कि क्या ये पॉसिबल है कि सेम स्ट्रैटेजी को मिमिक किया जा सके अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कंडीशन में। तो पहला तो ऑथर बोलता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान आर नॉट कंपेरेबल टू द एशियन नेशन। जो भी एशियन नेशन है, ये जो पूरा लिस्ट है आपको, इन सब जैसा नहीं है अफगानिस्तान या पाकिस्तान की कंडीशन। ये लोग अलग टाइप के नेशन है। कैसे अलग टाइप के नेशन है, तो यहाँ पे टेररिज्म बहुत ज्यादा है, और अभी क्योंकि तालिबान के रिसर्जेंस से ये हुआ है कि अलकायदा, दाइश और अदर जो इस्लामिक स्टेट्स, इस्लामिक IS है और या अदर जो इस्लामिक या फिर अदर बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है रिलीजन बेस्ड, वो फिर से रिसर्जेंस होने के उनके चांसेस बढ़ गए। तो एक ऑलरेडी इनसिक्योरिटी लोगों में, इनसिक्योरिटी कंपनीज में, इनसिक्योरिटी एक जनरल पॉपुलेशन में जो है वो ऑलरेडी फैल चुकी है, राइट। इसके बाद तालिबान के बारे में यह भी कहा जाता है कि दे हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट। और ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट वही मूवमेंट है जो मिलिटेंट ग्रुप एक्टिव जो है यूगर में, यूगर प्रोविंस चाइना का वही प्रोविंस है जहां पे चाइना करेक्शनल होम में बात कर रहा है रखने की मुस्लिम्स को, कि उनका जो उनके जो सोच है या मेंटालिटी या रेडिकलिज्म है उसको कंट्रोल किया जाए। तो ये करेक्शनल होम्स में रख रहा है
और इसके बारे में पूरी दुनिया में इसका काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ है। और वहां पे जो यूगर में जो मुस्लिम का एक मिलिटेंट ग्रुप एक्टिव है जिसको कहा जाता है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, उसके लिए तालिबान का सॉफ्ट कॉर्नर है। तो यहाँ पे तालिबान डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ गया चाइना के, क्योंकि चाइना चाहता है यूगर मुस्लिम्स के जो मिलिटेंट ग्रुप है उनको डीस्टेबलाइज करना, और उनका सपोर्ट कर रहा है तालिबान। इसके बाद द डिपेंडेंस ऑफ ऑन ओपियम मार्केट, वी ऑल नो कि द ओपियम कंट्रीब्यूट्स टू अराउंड 42% ऑफ द जीडीपी। जो अफगानिस्तान का जनरल आप कह सकते हो प्रोडक्शन है और जो जनरल उनका कॉस्ट है, जो जनरल उनका इनकम है, उसमें ओपियम की सबसे बड़ी रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओपियम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है अफगानिस्तान से। तो ये हमें ऑटोमेटिकली बता दे रहा है कि दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल मॉडल, बिकॉज द वर्ड ओपियम और द थिंग ओपियम इज मेक्स द कंट्री वेरी वल्नरेबल फॉर माफियाज एंड करप्शन। माफिया और करप्शन के नेक्सस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। कंट्री में कुछ भी एक सब्सटैंटिव चीज नहीं है जिसपे बेस करके कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में क्या है सबसे ज्यादा सब्सटैंटिव, तो एक टाइम तक रहा एग्रीकल्चर, देन हो गया सर्विस सेक्टर। पहले हमारे पास था एग्रीकल्चर, देन हो गया हमारा सर्विस सेक्टर। ये हमारे यहाँ हमेशा से सब्सटैंटिव सोर्स ऑफ जीडीपी रहा, सब्सटैंटिव सोर्स ऑफ इनकम रहा। बट अगर आपका जीडीपी और इनकम का ही मेजर सोर्स जो है वो ओपियम या ऐसी कोई ड्रग्स हो जाए, का प्रोडक्शन हो जाए, तो इट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक। तो ये तो हो गई अफगानिस्तान की बात कि अफगानिस्तान में सेम चीज करना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए चाइना के लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है। अब इन सब चीजों का इम्पैक्ट ये होगा कि व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ एन इमेज, तो अदर कंपनीज और जो मल्टीपल अदर ट्रेडर्स हैं वो आपकी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बन गया, बस उस बेल्ट और रोड इनिशिएटिव पे कोई अगर मॉल बनाना चाह ही नहीं रहा है। अब मॉल जब तक बनेगा नहीं तब तक वहां पे उस बेल्ट और रोड इनिशिएटिव से पैसा आना, रेवेन्यू जनरेट होना शुरू होगा नहीं। और मॉल लेने के लिए आपको कौन चाहिए, तो आपको चाहिए इंडस्ट्रियलिस्ट। और इंडस्ट्रियलिस्ट या कंपनी वाले लोग ऐसे होते हैं जो अपना बहुत ही कैलकुलेट करके कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं। और उनको अगर ये पता चल जाए कि आपकी कंट्री में इतना ज्यादा टेररिज्म एक्टिविटी हो रहा है, तो वो कभी भी ऐसी बेल्ट और रोड इनिशिएटिव में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको उसकी बेल्ट और रोड इनिशिएटिव की लॉन्जेविटी पे ही सवाल उठ जाएगा। सेकेंडली, ऐसी कंपनीज इंडस्ट्रियलिस्ट को ये भी पता होता है कि अगर एक कंपनी, अगर एक कंट्री पूरे के पूरे टेररिस्ट के कंट्रोल में है, तो उस कंट्री पे कभी भी सैंक्शंस डाला जा सकता है। अब वो सैंक्शन आपको डाल सकता है यूएस भी, वो सैंक्शन आपको मल्टीपल अदर ऑर्गेनाइजेशन भी डाल सकती है। और अगर आप पे सैंक्शन डल गया तो आपका जिनके साथ भी बिजनेस था वो सारे के सारे लोग लॉस में आएंगे। तो कोई भी अगर अफगानिस्तान आ जाता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक मेंबर बन के और उसका एक पार्ट बन के, तो कोई भी फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सारी चीजों को कैलकुलेट करेगा। तो इस तरीके से एक लॉन्ग टर्म परसेप्शन की अगर हम बात करें, अगर हम बस परसेप्शन की बात करें, तो चाइना के लिए एक हार्ड गेम हो जाएगा, चाइना के लिए एक टफ गेम हो जाएगा दुनिया वालों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को ये परसीव करवाना या फिर ये भरोसा दिलाना कि दिस इज अ सेफ प्लेस टू इन्वेस्ट इन। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में भी ये करना मुश्किल हो रहा है, इवन दो वहां पे ऑलरेडी कुछ प्रोडक्शन, ऑलरेडी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चुकी है। बट प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान डज नॉट हैज द पेइंग कैपेसिटी। तो वो ऑलरेडी जो चाइना का फंडेड एनर्जी प्रोजेक्ट है बीआरआई इनिशिएटिव के अंडर, उसको वो रीपे नहीं कर पा रहे जो उसके लिए उन्होंने लोन लिया। सेकेंडली, जो भी बिजनेस डिसीजन है पाकिस्तान में, हम सभी जानते हैं कि दे आर नॉट इकोनॉमिकली ड्रिवन। कोई भी चीजें वहां पे इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए नहीं होती है, बट वो हमेशा वो हमेशा होती है डेवलप, और उसको हमेशा बनाया जाता है ये ध्यान में रखिए कि आर्मी क्या चाहती है। हमेशा आर्मी जो है वो शॉट्स कॉल करती है, हमेशा आर्मी के हिसाब से सब कुछ होता है। द गवर्नमेंट एसेंशियली वर्क्स अंडर द एड एंड एडवाइस ऑफ द आर्मी। तो जब आर्मी आपके कंट्री को चला रही है, तो आर्मी मैन आर नॉट कंसर्न रियली विद द इकोनॉमी ऑफ योर कंट्री, दे आर कंसर्न विद द सस्टेनेंस ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल बाउंड्री एंड विद द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। सो दैट वे पाकिस्तान कैन बी वेरी रिजोल्यूट और रेजिलियंट. But then to run the economy, you need a political system, you need a correct or proper kind of political system, the kind of political system which is really thoughtful about the economic processes, about the economic changes, or about the need of the time that is required there. But that's not the case. So even investing or even continuing with Pakistan, the whole BRI initiative seems complicated in the case of China, or seems complicated for China, according to the author. So, in conclusion, the author says, first of all, the enormous market control by Western powers. हम ये जान रहे हैं कि इवन तो एशिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बट जो मार्केट कंट्रोल है अभी भी वेस्टर्न नेशन का बहुत है। तो इट विल ऑलवेज बी द केस कि चाइना ऐसा नहीं है कि बस एशियन नेशन पे डेवलप पे डिपेंड हो जाएगा। चाइना विल ऑल्सो ट्राई टू कनेक्ट विथ जो भी वेस्टर्न नेशन है।
जो भी वेस्टर्न नेशन है उनसे भी कनेक्ट करना चाहेगा। इसलिए अगर आप देखें, हमें अगर आपको मैप याद हो तो हम फर्स्ट पे आपको ले चलता हूँ, तो देख रहे हो आप चाइना यहाँ से किन किन को कनेक्ट कर रहा है, तो ये सेंट्रल एशिया, यूरोप, तो यूरोप को कनेक्ट कर रहा है इस रीजन से वो। और फिर नीचे के रीजन से आप देखो तो ये साउथ चाइना सी, साउथ पैसिफिक ओशन, साउथ ईस्ट एशिया, इंडियन ओशन, वेस्टर्न एशिया को कनेक्ट, सॉरी इंडियन ओशन को कनेक्ट करते हुए फिर से एक दूसरे रूट से भी यूरोप को कनेक्ट कर रहा है। तो पहली चीज तो ये दो रूट से यूरोप को कनेक्ट कर रहा है जो कि एक वेस्टर्न नेशन है। एंड देन एट द सेम टाइम जो भी लोकल साउथ एशियन नेशन है वहां पे अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। तो जैसे चाइना से कनेक्टेड होगा सेंट्रल एशिया, वहां से कनेक्टेड होगा वेस्टर्न एशिया, पर्शियन गल्फ एंड मेडिटेरेनियन सी। सिमिलरली चाइना से कनेक्ट होगा साउथ ईस्ट एशिया, उससे कनेक्ट होगा इंडियन ओशन, जो कि आपको उसके बेसिक कनेक्शन में भी, और साउथ पैसिफिक ओशन तक वो अपने रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव को ले जा रहे हैं। तो व्हाट वी कैन सी इज कि दे आर नॉट लिमिटिंग कि हमको बस अपना जो मार्केट है वो बस साउथ एशियन नेशन में ही रखना है। दे आर ओपन विद द आइडिया कि उनको पूरे के पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करना है। बट देन here comes the real problem, because the unfriendly relation currently they are sharing with US, it anything that happens on the Belt and Road Initiative. So जैसे recently क्या हुआ, तालिबान ने ग्वादर पोर्ट के पास अटैक किया जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए। अब अगर ऐसा कोई टेररिस्ट अटैक लेट से हो जाता है बेल्ट और रोड इनिशिएटिव पे, टेररिस्ट अटैक अगर हो जाता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे, उस कंडीशन में ये यूएस को एक एक्सक्यूज दे देगा। यूएस उसको एक्सक्यूज बनाता हुआ सैंक्शन डाल देगा, इन्वेस्टमेंट सैंक्शन डाल देगा किसी भी कंपनी को इन्वेस्ट करने में बीआरआई में, किसी भी कंपनी को यहाँ पे कोई शॉप लेने में, किसी भी कंपनी को यहाँ पे किसी भी तरह का मॉनेटरी हेल्प करने में, असिस्टेंस करने में। तो ये सारी चीजों से जो चाइना का लॉन्ग टर्म प्लान है उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है, उस पर बहुत ज्यादा डेंट्स पड़ सकते हैं। सेकेंडली द फाइनेंशियल मार्केट, अगर हम बात करें जस्ट द फाइनेंस की मार्केट की, जो बात इकोनॉमिक मार्केट जो है वो भी ऐसी सारी एक्सपेक्टेशन को इनकॉर्पोरेट करता है। वो लोग भी लॉन्ग टर्म सोचते हैं, दे कंसिडर ऑल द प्रॉब्लम्स दैट कैन अराइज इन फ्यूचर, एंड सो इट कैन बिकम डिफिकल्ट फॉर द चाइनीज पार्टी टू सिक्योर फंडिंग फॉर बीआरआई, बिकॉज बीआरआई के फंडिंग के लिए अब उनको और ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है। बीआरआई में फंड करना कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अब नहीं चाहेगा, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन को ये लगेगा, हर फाइनेंशियल मार्केट को ये लगेगा कि अब तो ये जो बीआरआई है वो टेंटेड हो गया है तालिबान से, तालिबान का भी अब इन पर से रहेगा, और तालिबान किसी भी दिन कोई टेररिस्ट डिस्ट्रक्शन कर सकता है, कोई एक्टिविटी, कोई एक्ट कर सकता है टेररिज्म से रिलेटेड, जो कि पूरी की पूरी एरिया को डिस्टेबलाइज कर सकता है। सो इन कंक्लूजन द ऑथर इज जस्ट कमिंग अप विद वन पॉइंट, एंड दैट इज कि इन द गेम ऑफ चेस, अगर हम इसको चेस की तरह देखें तो यूएस का जो ये मूव है, मूव क्या है, अपनी ट्रूप्स को अफगानिस्तान से वापस बुला लेने का, वो एक्चुअली में चाइना के लिए कॉस्टली प्रूव होने वाला है। चाइना को उससे कोई खास मदद नहीं मिलने जा रही है, बट चाइना के लिए वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक, और यू कैन से कि इन द लॉन्ग रन चाइना के लिए एक लॉस सफरिंग मूव हो सकता है। यूएस के सैंक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख रहे हो यूएस मल्टीपल नेशन पे ऑलरेडी सैंक्शन डाल के रखा है। अब जैसे आप देख सकते हो अभी रिसेंट अगर सैंक्शन देखो तो आप रिसेंटली चाइना पे सैंक्शन लगा है, फिर रशियन रिसर्च पे सैंक्शन लगा है, फिर चाइना रशिया दोनों पे सैंक्शन लगा है, आप यहाँ जर्मनी पे सैंक्शन लगा है, टर्की पे पॉसिबल सैंक्शन है, इंडिया भी पॉसिबल सैंक्शन फेस कर रहा है क्योंकि उसने S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है रशिया से, और रशिया क्योंकि एडवर्सरी कंट्री है तो हमने पढ़ा है कि जो काउंटरिंग एडवर्सरी एक्ट है यूएस का, उसके अंडर वो ऐसी सारी कंट्रीज पे सैंक्शन डाल सकते हैं जो कंट्रीज उसकी एडवर्सरी कंट्री से कोई भी तरह का किसी भी तरह का डील करती है। तो क्योंकि इंडिया ने अभी S-400 मंगवाया है रशिया से, तो ऐसा हो सकता है कि इंडिया पे भी ऐसा एक सैंक्शन लगा है। एंड देन रिसेंटली यूएस ने टिकटॉक को भी और वीचैट को भी बैन करने की बात करी थी, जो कि चाइनीज फॉर्म है। तो सैंक्शंस सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है यूएस के पास, जो लगा कि वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोक सकता है, किसी भी कंट्री की जो, अब जैसे अभी रिसेंट केस इन पॉइंट हमारे पास है ईरान का। ईरान में ही क्या हुआ, तो जैसे ही कासिम सुलेमानी को मारा गया, ईरान में बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए क्योंकि ईरान से बहुत सारा प्रोटेस्ट शुरू हो गया अगेंस्ट अमेरिका, और जब सैंक्शन लगे तो कंट्री में इन्फ्लेशन 300% 400% तक बढ़ गया था, कंट्री एकदम जो है वो इकोनॉमिक कोलैप्स के कगार पे आ गई है। So that way, the sanctions are really good tool that is in hand of US, और जिसका वो यूज करते हैं ऐसा किसी भी कंट्री जो उनके खिलाफ जा रहे हो, जो उनके अगेंस्ट जा रहे हो, जो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहे हो, उसको कंट्रोल करने के लिए। एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस आर्टिकल एज वेल। The second one is spirit of federalism lies in consultation. I will discuss this article, just give me 1 minute. In India we know कि there is concept called cooperative federalism. हम जिस चीज को फॉलो करते हैं वो है cooperative federalism.
ओके। एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब आवर कंट्री इज ऑलमोस्ट लाइक अ फेडरल कंट्री, मतलब देयर विल बी अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देयर विल बी मल्टीपल स्टेट्स कमिंग इनटू यूनियन। तो बहुत सारे स्टेट मिलकर यूनियन बनाते हैं और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। बट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट का कोऑपरेशन लेना है, कंसल्टेशन लेना है, स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल पे डिपेंडेंट रहना है। दैट्स हाउ द सिस्टम इज। स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि हम टोटली इंडिपेंडेंट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती है कि हमें कोई मतलब नहीं है स्टेट में क्या चल रहा है। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है मुकुंद पी उन्नी के द्वारा, ये एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसिंग, इसमें ये आर्ग्यू ये कर रहे हैं कि अभी जो रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे लॉज को पास कर दिए बिना, सॉरी यूनियन गवर्नमेंट बहुत सारे लॉज को पास कर दिए बिना स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, कैसे वो हमारी इस फेडरल प्रिंसिपल को अंडरमाइन करता है, कैसे हमारी फेडरल प्रिंसिपल के अगेंस्ट है वो। दूसरी बात वो ये भी करते हैं कि यूनिलैटरल लेजिस्लेशन, जो भी एक तरफा लेजिस्लेशन होता है जिसमें आप स्टेट गवर्नमेंट को एक बार भी पूछते नहीं हो, कंसल्ट नहीं करते हो, उसमें आपको बस प्रोटेस्ट ही दिखने वाला है स्ट्रीट्स पे और कुछ नहीं। जो प्रोटेस्ट हम अभी देख रहे हैं बहुत दिनों से चल रही है, किसान आंदोलन चल रहा है, ऐसे कितने सारे प्रोटेस्ट है जो बहुत लंबा लंबा टाइम चल रहे हैं, उसको भी कनेक्ट करता है ऑथर की ये सारी चीजें होंगी जब तक कि आप किसी लॉ को बनाते वक्त स्टेट का कंसिडरेशन नहीं लोगे, स्टेट को भी इन कमांड नहीं लोगे, स्टेट को भी इन कॉन्फिडेंस नहीं लोगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस आर्टिकल। द फर्स्ट पॉइंट इज द राइजिंग कंसर्न अबाउट सेंट्रल यूनिलैटरलिज्म। अगर रिसेंट की बात करें हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार यूनिलैटरलिज्म अपना बढ़ाती जा रही है। दैट इज वो बस अपने हिसाब से उनको जो लॉ लाना है उसको ला देते हैं, उसको पास करा देते हैं, अप्रूव कर देते हैं। दे नेवर आस्क फॉर कंसल्टेशन विद द और फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। तो starting the article, the author says कि recently we have seen that the state or the central government rather is avoiding discussions with the states on the subject in concurrent list. And we know one thing about the concurrent list. There are total 3 lists under Schedule 7 of the Constitution of India. And in these 3 lists are there. 3 lists में आपको 3 है। एक है आपको यूनियन लिस्ट, एक है आपको स्टेट लिस्ट और एक है आपको कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट की जितनी भी सब्जेक्ट्स होंगी, टोटल 90 से ऊपर सब्जेक्ट्स हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स पे जो लॉ मेकिंग का पावर है वो दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्टेट लिस्ट में जितनी भी सब्जेक्ट्स होंगी, अराउंड 50 के अराउंड सब्जेक्ट्स हैं, उस पे लॉ मेकिंग का पावर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को। और कंकरेंट लिस्ट एक काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जहां पे जितनी भी सब्जेक्ट्स होंगी, अराउंड 40-50 सब्जेक्ट्स यहाँ भी है आपको और उससे ज्यादा ही, उन पे जो है लॉ वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी ला सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी ला सकती है। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि सर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लाएगी तो फिर लॉ किसका एप्लीकेबल होगा? तो इस केस में भी जो हमारे पास लॉ है अभी, जो प्रेसिडेंट्स है, जो जजमेंट्स है, वो बताती हैं कि उन केस में सेंट्रल गवर्नमेंट अगर लॉ ला रही है, स्टेट गवर्नमेंट लॉ ला रही है, तो उस स्टेट में उस स्टेट गवर्नमेंट का लॉ एप्लीकेबल होगा, जो हमें आज डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस से भी पता चलेगा, जो हम लोग लेटर ऑन इसी डिस्कशन में समझेंगे। अब ये क्यों हुआ, क्यों ऑथर को ये लिखने की जरूरत हुई? तो ऑथर बताता है कि रिसेंटली केरला के लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल क्या है? रिसेंटली एक बिल लाया गया है जिसमें सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी कमीशन को भी स्टैब्लिश करने की बात की गई है। सेकेंडली ऑथर बताता है कि इवन इन तमिलनाडु जो लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है अगेंस्ट द कंट्रोवर्शियल फार्म लॉ के खिलाफ एक रेजोल्यूशन रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी पास किया है। ऑथर का ये भी कहना है कि पार्लियामेंट जो है फार्म लॉ विदाउट कंसल्टिंग द स्टेट्स पास किया, उन्होंने कोई भी स्टेट का कंसल्टेशन नहीं लिया है। एंड हियर कम्स द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज that if we talk about agriculture, the agriculture clause is given under entry 14 of the state list. This particular thing, this agriculture area is given under entry 14 in the state list. But it was purportedly, it was deliberately, it was जानबूझ के पार्लियामेंट ने एंट्री 33 को साइट किया जब वो फार्म लॉ को लाने थे। एंट्री 33 क्या है? एंट्री 33 कंकरेंट लिस्ट में। मैं एक चीज आपको फिर से यहाँ क्लैरिफाई कर दूं, कंकरेंट लिस्ट के साथ ये है कॉन्सेप्ट कि अगर कंकरेंट लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों का लॉ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ है वो हमेशा प्रीमेसी में रहेगा, वो हमेशा प्रिवेल करेगा। ठीक है, बट ओनली विद कंकरेंट लिस्ट। अब जैसे ही वो एंट्री 14 एग्रीकल्चर क्लॉज को बदल के बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो ये जो फार्म लॉ है उसको ट्रेड एंड कॉमर्स क्लॉज के अंडर लाए हैं, वैसे ही अब उनका जो लॉ है, वो बिल है, वो कंकरेंट लिस्ट में फॉल हो जाता है। कंकरेंट लिस्ट में फॉल होते ही ये वाजिब है और ये राइट है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि वो उस पर लॉ ला सकते हैं और उनका जो लॉ होगा उसी को प्रिवेसी, उन्हीं को वही प्रिवेल करेगा, उसी को प्रिवेसी मिलेगी।
ऑथर का कहना है कि नहीं, द मैटर हियर इज कि लैंड फार्म लॉ की बात कर रहे हैं, फार्म लॉ इज मोर कनेक्टेड टू एग्रीकल्चरल क्लॉज देन विद ट्रेड एंड कॉमर्स क्लॉज। ट्रेड एंड कॉमर्स की भी कुछ बातें हुई, जैसे आप जो लोकल मार्केट्स को हटा रहे हो, आप एमएसपी के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज आप कह सकते हो कि ट्रेड एंड कॉमर्स से इंसिडेंटली रिलेटेड है, इंसिडेंटली रिलेटेड है, नॉट डायरेक्टली। डायरेक्ट रिलेशन या फिर डायरेक्ट अगर देखा जाए इस लॉ के बारे में, तो ये लॉ किससे रिलेटेड होगा, दैट इज एग्रीकल्चर क्लॉज। बट सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट रादर बोली कि नहीं, हम एंट्री 14 में ला ही नहीं रहे हैं इस लॉ को, हम ला रहे हैं उसको एंट्री 33 में, जो दिया गया है कंकरेंट लिस्ट में। और क्योंकि वो कंकरेंट लिस्ट में दिया गया है, हम जो भी लॉ लाएंगे वो पूरी इंडिया में एप्लीकेबल होगा, वो पूरी इंडिया में माना जाएगा, वो पूरी इंडिया में इफेक्ट में रहेगा। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड एक डॉक्ट्राइन की, तो यहीं पे हमें हेल्प करता है डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। ये है क्या, तो इस डॉक्ट्राइन का ओरिजिनेशन हुआ कनाडा में और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1880 में। ये डॉक्ट्राइन बाद में इंडिया में भी लाया गया और इसको आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट करता है। 7th शेड्यूल भी इसी के अकॉर्डिंग में है। इंडिया में इसको इवोल्यूशन हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के द्वारा, और इसका आज के डेट में बहुत ज्यादा उपयोग होता है इन डिसाइडिंग मल्टीपल केसेस। इसका मतलब ये है फिफ्थ एंड सब्सटेंस डॉक्ट्रिन का कि यू ऑलवेज हैव टू लुक फॉर द ट्रू नेचर ऑफ लॉ। द रियल सब्जेक्ट मैटर इज चैलेंज एंड नॉट इट्स इंसिडेंटल अफेक्ट ऑन अनदर फील्ड। तो जब भी आप किसी भी लॉ की बात करोगे, उस लॉ का रियल नेचर जानने के लिए आपको उसके रियल सब्जेक्ट मैटर पे फोकस करना होगा। तो जैसे फार्म लॉ, अगर मैं बस आपको नाम ही कहूं तो फार्म लॉ ज्यादा कनेक्टेड होगा एग्रीकल्चरल से या ट्रेड से। According to the author, it is more connected to agriculture, or which is also like obvious, which is also very logical. But the parliament said कि no, it is not connected to agriculture. We are bringing it under the trade and commerce entry, which is given in the concurrent list or list 3, not under the state list. तो had it been the case कि पार्लियामेंट में बोलते कि एग्रीकल्चर के अंडर हम ला रहे हैं, तो पार्लियामेंट में ही वो नहीं होता पास, सुप्रीम कोर्ट उसको इलीगल बना देता, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स पे आप लॉ ला नहीं सकते हो। बट पार्लियामेंट को एक ऐसा लॉ लाना भी था, तो उन्होंने सिंपली ये कहा कि हम स्टेट मैटर के सब्जेक्ट पे लॉ ला ही नहीं रहे, वी आर नॉट रेगुलेटिंग एग्रीकल्चर हियर, रादर वी आर रेगुलेटिंग ट्रेड एंड कॉमर्स। ओके, तो ये है पिथ एंड सब्सटेंस। अगर आप पिथ एंड सब्सटेंस डॉक्ट्राइन को फॉलो करो, तो अकॉर्डिंग टू दैट डॉक्ट्राइन इट सेज कि द रियल नेचर ऑफ द लॉ शुड बी एम्फसाइज्ड अपॉन। After that, it also says it emphasizes the nature of the law, says that only the real and essential subject matter of a case has to be challenged and not its incidental or ancillary effect on something. In relation to the interpretation of a statute, the doctrine is used in a manner to find out the real essence of a statute. बार बार हम real essence की बात कर रहे हैं, for which it has been formulated. This doctrine also states that within their respective spheres, within their मतलब central government and state government, the state and union legislature are made supreme. स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम है, सेंट्रल पूरे देश के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम है, एंड दे शुड नॉट इंक्रोच अपॉन द स्फीयर डिमार्केटेड, और वो एक दूसरे के स्फीयर पे, एक दूसरे के सब्जेक्ट पे लॉज नहीं बनाए। However, if one among the state and the center does not encroach upon the sphere of other, the court will apply the doctrine of pith and substance. But अगर कोई एक सेंट्रल या स्टेट कोई भी किसी के भी स्फीयर पे इंक्रोच कर लेता है, अगर वो किसी और के सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बना देता है, उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है वो पिथ एंड सब्सटेंस का यूज करते हुए आंसर देगी कि वेदर दिस इज लीगल और दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल और दिस इज अ राइट लॉ, प्रॉपर लॉ, और दिस नीड्स टू बी स्ट्रक डाउन बिकॉज द पार्लियामेंट डज नॉट हैज द jurisdiction for it or the power or the authority for it. And similarly, if the state government makes a law on the subject enumerated under list 1, that is central list, then in that case the Supreme Court can struck down that particular law also, saying that the state government does not have the authority to make a law on list or subjects given under union list. Moving on, the author also then states the state of Bombay versus FN Valsara case. In this case, it was considered that if there is two laws on a single subject matter, law made by a state government and law made by central government, and there is no possibility of reconciliation, देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। मान के चलो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है, स्टेट गवर्नमेंट का लॉ है, ये दोनों लॉ जो है एक तरीके से सिमिलर है, इंसिडेंटल है, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर इन दोनों लॉ में कुछ मेजर डिफरेंसेस है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि एमएसपी जो है अब नॉन एग्जिस्टेंट है और स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि एमएसपी जो है वो एग्जिस्टिंग है, तो यहाँ पे एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है जिसका रेजोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, जिसका रिकॉन्सिलिएशन पॉसिबल नहीं है। उन केसेस में अगर वो एंट्री जो है कंकरेंट लिस्ट में है और यूनियन लिस्ट में है, वहां पे
देखते हुए, पिथ एंड सब्सटेंस का यूज करते हुए ये जजेस को तय करना है कि अगर वो मैटर कंकरेंट लिस्ट में है तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा, अगर वो मैटर यूनियन लिस्ट में है तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। तो स्टेट लेजिस्लेचर विल प्रिवेल इफ अ मैटर इज फॉलिंग अंडर द कंकरेंट लिस्ट, बट उस पर यूनियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा लॉ लेके आई है जो उसको बोल रही है कि नहीं ये हमारे यूनियन लिस्ट में है। कभी भी अगर यूनियन गवर्नमेंट जस्ट टू बाईपास दिस प्रोसीजर ऐसा कुछ करती है, तो गवर्नमेंट हैज दिस, और नॉट गवर्नमेंट सॉरी, द जजेस और द कोर्ट हैज दिस पावर टू देन reprimand the court or reprimand the government and tell them that this law is just not your authority, you are exceeding your authority in making or in bringing such a law. अब आते हैं हम करेंटली इश्यूज पे, कौन कौन से ऐसे लॉ अभी आए हैं जिनसे लोगों को प्रॉब्लम है और जिनसे बहुत सारे स्टेट्स को प्रॉब्लम है। तो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, इस लॉ के अगेंस्ट वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला, ये सब बोल रहे हैं कि ये लोग इस लॉ के अगेंस्ट है, ये नहीं चाहते कि ये लॉ इनको अप्लाई करना पड़े अपने 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 स्टेट्स में। हुआ क्या है कि ये लॉ अपना फील्ड अगर इसकी बात करें तो ये एंट्री 38 ऑफ कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। अभी तक इसके लिस्ट पे अभी तक इस मैटर को रेगुलेट करती थी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, और इसके जो मेंबर्स होते थे वो स्टेट गवर्नमेंट ही चुनती थी। तो आप कह सकते थे कि अभी तक स्टेट का जो है पावर था इलेक्ट्रिसिटी पे। नए अमेंडमेंट के साथ क्या हुआ है कि अब एक नेशनल सिलेक्शन कमेटी बनने वाला है, और नेशनल सिलेक्शन कमेटी में जो मेंबर्स होंगे वो अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट के पास जो पावर था इलेक्ट्रिसिटी से रेवेन्यू जनरेट करने का या उसको रेगुलेट करने का, वो अब छीन लिया गया है। ये अमेंडमेंट एक और चीज कहता है कि अब इसमें एक इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनेगी, और इस इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी जो होगी उसके मेंबर्स सेंट्रली अपॉइंटेड होंगे। तो अगेन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास फिर से एक एक्स्ट्रा पावर दे दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फिर से यहाँ पे प्रीमेसी दे दी गई है। तो इस पर्टिकुलर लॉ से हमें ये पता चल रहा है कि धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाह रही है कि स्टेट गवर्नमेंट के पावर को खत्म कर दिया जाए और सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट में वेस्ट करे। ऐसा सिमिलर एक मैटर अभी रिसेंटली जो क्लियर हुआ है वो है आपको ओबीसी रिजर्वेशन कोटा से रिलेटेड, जहां पे पहले जो स्टेट की बॉडी थी जो रिकॉग्नाइज करती थी ओबीसीज को, उसको हटा दिया गया था, स्टेट बैकवर्ड सर्विस कमीशन जो था, और उसकी जगह पे ले आया गया था नेशनल बैकवर्ड कमीशन। नेशनल बैकवर्ड कमीशन को ये काम दे दिया गया था कि अब आपको आइडेंटिफाई करना है हर स्टेट में कितने सारे कैटेगरीज हैं जो ओबीसी में आती है, कितने सारी क्लासेस हैं। बट ये करते हुए ये भी करा गया था कि स्टेट से वो पावर छीन लिया गया था। रिसेंटली फिर क्या हुआ, पार्लियामेंट में कोर्ट में उस चीज को स्ट्रक डाउन कर दिया गया, और फिर से जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको वो पावर रिज्यूम करा दिया गया, उसको वो पावर फिर से उनमें वेस्ट कर दिया गया। तो ऐसी चीजें बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट करती है कि स्टेट गवर्नमेंट के पावर को रिस्ट्रिक्ट करे जितना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जितना रिस्ट्रिक्ट वो करेंगी उतनी ज्यादा उनके लिए फायदेमंद है, उतना ज्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा एंजॉय करने को। इस सारी चीजों से होगा क्या, अब जो रेगुलेशन का पावर था हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का, वो चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। ऐसी लॉ लाने से पहले कोई भी कंसल्टेशन नहीं किया गया किसी भी स्टेट से। ऐसा लॉ लाया गया इसलिए भी कि अब इस लॉ के अंडर में आप प्राइवेट पार्टीज को स्टेट जो है वो अपना इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है। तो जैसे अभी तक हमारे यहाँ सरकार के हाथ में होता है, इलेक्ट्रिसिटी सरकार चलाती है, अब वो प्राइवेट पार्टीज को भी अलाउ कर सकती है कहीं कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी चलाना, रेगुलेट करने के लिए। अगर आप बात करो इस बिल की, तो ये रिलीज हुआ है अप्रैल 17 को। इसका पर्पस है कि जितने भी डिस्कॉम्स है, जो इलेक्ट्रिसिटी के हमारी कमीशन है, जो उनको कंट्रोल करते हैं, जो उनको लाइसेंस करते हैं, उन सबको प्राइवेटाइज कर देना, उन सबको प्राइवेट हैंड्स में दे देना, और सब लाइसेंसिंग भी अलाउ करना। मतलब आप लाइसेंसर भी लाइसेंसिंग उसको फर्दर कर सकता है, और इसमें अब स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑप्शन होगा कि वो प्राइवेट कंपनीज को चुन के ये सारा सब लाइसेंसिंग करे। ये सिमिलर टू द अप्रोच टेकन इन मुंबई एंड दिल्ली। मुंबई और दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही होता है। इट ऑल्सो प्रपोजेज टू सेट अप इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी, जिसकी बात हमने कर ही ली है, और ये भी जो है वो सेंट्रली गवर्नमेंट अपॉइंटेड होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बेसिकली अब बहुत ज्यादा पावर मिल जाएगा इन द मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर हम बात करते हैं मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज एक्ट की, तो इसमें भी एक अमेंडमेंट आया है। ये एक्ट क्या कर रहा है, ये एक्ट अब सारे के सारे जो पोर्ट्स हैं उनके रेगुलेशन के लिए आया है, और इसका नाम है मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज एक्ट। तो इसमें बस मेजर पोर्ट्स को इन्होंने रेगुलेट करना है, जो कि पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जबकि जो नॉन मेजर पोर्ट्स हैं वो पावर है कंकरेंट लिस्ट में, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉज ला सकती है। अब अभी जो ये लॉ लेके आई है मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट, उससे हुआ ये कि जितनी भी हमारे देश में ऑलरेडी पोर्ट्स के लिए या उनको रेगुलेशन के लिए लॉज थे वो सारे रिडंडेंट हो गए। तो सबसे पहले तो गोवा का ये कहना है कि बहुत सारा लोकल लॉज जो है वो रिडंडेंट हो गया, जो पहले से ये सारी चीज़ों को रेगुलेट करता था एक बार में। इसके बाद जो नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, जो उतने बड़े पोर्ट्स नहीं हैं,
उनका फील्ड ऑफ लेजिस्लेशन देखें तो दैट फॉल्स अंडर एंट्री 31 ऑफ कंकरेंट लिस्ट, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ हैव द पावर टू मेक लॉज। बट यहां पे इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए इंडियन पोर्ट्स बिल 2021 लाया गया, और इस पोर्ट्स बिल में ये कर रहे हैं ये कि अब ये जो पावर है प्लानिंग, डेवलपिंग एंड रेगुलेटिंग का नॉन मेजर पोर्ट्स को, वो दे रहे हैं वो मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल को। तो अभी तक जो नॉन मेजर पोर्ट्स थे उन पे कंट्रोल होता था किसका, तो स्टेट गवर्नमेंट का, और जो मेजर पोर्ट्स होते थे उन पे कंट्रोल होता था किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। बट अब जो है नॉन मेजर पोर्ट्स पे भी कंट्रोल होगा मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का, और एमएसडीसी में जितने भी है वो सेंट्रली अपॉइंटेड हैं। तो इन सारे लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, वो अपॉइंट कर रही है। तो एक तरीके से जो पोर्ट है, नॉन मेजर पोर्ट्स है, वो भी अब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ से निकलता जा रहा है। तो अब एमएसडीसी क्योंकि लार्जली कंट्रोल्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट, तो इस कारण से इस लॉ के खिलाफ भी बहुत सारे स्पेशली जो कोस्टल स्टेट्स है लाइक ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला, दे नाउ हैव कमिंग और दे हैव ऑब्जेक्टेड टू द लॉ। मेजर पोर्ट्स, नॉन मेजर पोर्ट्स की जब बात करें तो इट इज अ इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि हमारे इंडिया में कितने मेजर पोर्ट्स हैं। 12 हैं टोटल नंबर में। इनमें से जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कांडला, मुंबई, मोरमुगांव, मंगलुरु, कोची, तुतिकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड कोलकाता। अब मेजर पोर्ट्स जितने भी इन्नौर के अलावा वो सारा कुछ अभी तक एक्ट किए जाते थे, गवर्न किए जाते थे मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 से। अब रिसेंटली सेंट्रल ने एक मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी बिल लाया है 2020, और इसको फरवरी में पास भी करा दिया गया। तो अब इन्नौर हैपेंस टू बी द कंट्री फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट एंड इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। तो इन्नौर पहला ऐसा मेजर पोर्ट बन गया जिसको इन्होंने प्राइवेट हैंड्स में दे दिया है, और जो एक कॉर्पोरेशन है, जो एक कंपनी की तरह एक्ट करेगा, एक कंपनी बन चुका है वो। अब अगर हम बात करें कि लॉ क्या कहता है इस पूरे इशू के बारे में, अकॉर्डिंग टू लॉ होना क्या चाहिए, तो जो मॉडल हमने लिया है इस पूरे सिस्टम का, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट का, वो हम लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। तो ये जो फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोरो किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। और इसको बनाते वक्त हमारे जो ड्राफ्टर्स थे उन्होंने जानबूझ के कंकरेंट पावर को रखा था कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट कुछ चीजें ऐसी होंगी जिन पे दोनों गवर्नमेंट एंजॉय करेगा रूल मेकिंग, दोनों गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होगी रूल मेकिंग। सेकेंडली बोलता है कि सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट, जो भी कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं वो यूनियन लिस्ट में धीरे धीरे ट्रांसफर होते जा रहे हैं। तो जब हमारे फार्मर्स ने ये बनाया था उनका ये आइडिया नहीं था कभी भी कि जो कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट है वो भी यूनियन गवर्नमेंट अपनी जिद से धीरे धीरे करके अपने साइड ले आएगी। उनको ये सच में लगा था कि यूनियन गवर्नमेंट बस अपने लिस्ट से मतलब रखेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपने लिस्ट से मतलब रखेगी, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों कोऑपरेशन में काम करेंगे। तो उनका आइडिया था कोऑपरेशन का, उनका आइडिया था कंसल्टेशन का। हो क्या रहा है कि ओवर टाइम यूनियन गवर्नमेंट क्या कर रही है कि धीरे धीरे करके ये सारी कंकरेंट लिस्ट के जो मैटर है उसको वो यूनियन लिस्ट में ट्रांसफर करती जा रही है, उसको ऐसे दिखाती जा रही है कि ये सारा यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट है। और इसमें ऑब्वियसली बढ़िया प्लीडिंग, अच्छे लॉयर्स काम आ रहे हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट उसको सच में दिखा पा रही है, प्रूव कर दे रही है कोर्ट को कि यस, जैसे फार्म लॉ के साथ ही उन्होंने किया, उसको उन्होंने ट्रेड एंड सिक्योरिटी का मैटर्स दे दिया, ट्रेड एंड बिजनेस का मैटर दे दिया, जबकि वो रिलेटेड है फार्म से, जबकि वो रिलेटेड एग्रीकल्चर से, तो उसको जाना चाहिए क्या, जाना चाहिए था कंकरेंट लिस्ट में। अब देखते हैं सरकारिया कमीशन रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये इस बारे में ऑलरेडी बात कर चुका है। उन्होंने बोला है कि देयर शुड बी अ कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन इन ऑल एरिया ऑफ कंकरेंट और ओवरलैपिंग jurisdiction through a process of mutual consultation and cooperation. So the word that is coming again and again is consultation and cooperation. Without consultation and cooperation, you cannot make the state feel part of the country. You cannot make the state be secure about your steps, about your decisions. And then ultimately the union government, while exercising power under the concurrent list, limit itself to the purpose of ensuring uniformity. This should be the ideal model कि जब यूनियन गवर्नमेंट कंकरेंट लिस्ट में कोई लॉ लेके आ रही है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन के लिए उन्होंने लेके आया क्या, तो आपने एजुकेशन के लिए देखा है एनईपी आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है। तो एनईपी लाने का मेन मकसद क्या था कि उससे पूरे इंडिया में एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन होगा, एक यूनिफॉर्मिटी आएगी हमारे एजुकेशन में, ज्यादा लिबर्टी मिलेगी स्टूडेंट्स को। तो दैट इज ओके, डज नॉट मीन कि आप जो है एजुकेशन को, आप कंकरेंट एजुकेशन पे आप स्टेट गवर्नमेंट को कोई लॉ बनाने ही नहीं देंगे इसका, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट में है। तो स्टेट गवर्नमेंट भी ठीक है, आपने एनईपी बना दिया, स्टेट गवर्नमेंट ये बना सकती है कि वीकली हॉलीडेज या मंथली हॉलीडेज कब कब होंगे, दैट पावर इज गिवन टू देम। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कितने हॉलीडेज होंगे या फिर कब होंगे, वो पावर हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट एंजॉय करे। सो दैट शुड बी द केस। अगर वहां तक है तब ठीक है, बट व्हाट द इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग कि दे आर सेइंग कि नो नो नो, एजुकेशन इज नॉट एट ऑल अ कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट।
हम जो लेके आ रहे हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड ही नहीं है, हम उसको लेके आ रहे हैं अपने मैटर में, वो किसी ना किसी एक से कनेक्ट कर देंगे। अब जैसे एजुकेशन को वो कनेक्ट कर देंगे अपने यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे तो है नहीं, बट सिक्योरिटी से वो कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे कि अगर हम एजुकेटेड नहीं होंगे तो वी वोंट बी सिक्योर इनफ फॉर सिक्योरिटी और फॉर एनी काइंड ऑफ dignity in this world. We need to be educated, but that does not make any sense. It is just incidentally connected, it is indirectly connected to the security issue NEP, but it is directly connected to education यहाँ पे मेन मुद्दा है, वो हमारा सबसे ज्यादा कनेक्शन है। तो हमें उसको कंकरेंट लिस्ट जैसा ही ट्रीट करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी पावर को एक्सेस में नहीं यूज करना चाहिए और इंक्रोचमेंट नहीं करनी चाहिए कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे या फिर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे। यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस नहीं, रादर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स का। तो एक बार आप ध्यान से देख लोगे अच्छा रहेगा, जस्ट टू गेट द न्यूज इन फ्यूचर। आपको कोई भी न्यूज आगे अगर पढ़ोगे तो उसको समझने में आपके लिए आसानी होगी। अब let's see what are the opinion of the commission in court on the issue. So if we talk about the National Commission to review the working of the constitution by headed by Venkat Chalia, then that commission also in the year 2000 stated that individual and collective consultation with the states, एक एक स्टेट से भी और सारे स्टेट से एक साथ भी कंसल्टेशन जरूरी है, और इंटर स्टेट काउंसिल का हम उपयोग कर सकते हैं इस चीज के लिए, जो कि आर्टिकल 263 में दिया हुआ है। तो आर्टिकल 263 बेसिकली हमारे लिए इंटर स्टेट काउंसिल को एस्टैब्लिश करता है, जहां पे पर्पस इसका ये है कि पार्लियामेंट, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, ये सारे बैठ के किसी भी पॉलिसी पे चर्चा करें, किसी भी चीज को बढ़ाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर हो, लोकल गवर्नेंस हो, फिस्कल फेडरलिज्म हो, इकोनॉमिक प्लानिंग हो, इन सारी चीजों के डिस्कशन के लिए एक फोरम टाइप बनाया गया है। तो ये सजेस्ट किया वेंकटचलिया कमीशन ने कि उस फोरम का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होना चाहिए, और गवर्नमेंट जो है वो जब भी कोई लॉ लेके आए, जब भी कोई लॉ बनाए, तो उनको ध्यान देना चाहिए कि दे हैव डन द प्रॉपर कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। अब अगर हम बात करें एसआर बोमनई केस की, जो कि वन ऑफ द लीडिंग जजमेंट्स है, लैंडमार्क केस है, वहां भी स्टेट के बारे में ये कहा गया था कि स्टेट आर नॉट मियर अपेंडेजेस। ये बस स्टेट गवर्नमेंट जो है यूनियन गवर्नमेंट की एजेंट नहीं है या फिर बस उसके साथ चिपकी हुई नहीं है। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, और यूनियन गवर्नमेंट को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो स्टेट के पावर है उस पर वो ट्रैम्पल ना करे, उस पर वो उसको वो कुचले नहीं, उसको वो रिस्पेक्ट करे। सो अल्टीमेटली इन कंक्लूजन, in the I mean towards the end of the article, the author says कि the essence of cooperative federalism lies in consultation. Without consultation and dialogue, and by taking unilateral legislation, you cannot develop this idea of cooperative federalism. आपको अगर हर स्टेट को आप बात नहीं करोगे तो वो आपके साथ नहीं रहेंगे, धीरे धीरे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ना शुरू हो जाएगी between the central and the state government. And so the best way is to perform proper consultation and dialogue before you come up with a law, because unilateral legislation, अगर आप एक तरफा legislation बनाते चले जाओगे बिना स्टेट को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, तो उससे बस आपका ज्यादा से ज्यादा प्रोटेस्ट ही होगा स्ट्रीट्स पे, जैसा अभी हो रहा है। अगर हम बात करें फार्मर प्रोटेस्ट या ऐसी प्रोटेस्ट की, तो वो प्रोटेस्ट के नंबर्स और ज्यादा बढ़ते जाएंगे इफ यू डोंट वर्क ऑन इट, ऑन दिस एटीट्यूड, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट डू समथिंग about this particular problem. And that's all this article had for you, and that's all I also have for today's discussion. I hope all of you liked it, so don't forget to like the video, share it with your friends, and tune in for tomorrow editorial. I will be coming up at the same time. Thank you all, thank you everyone. And if you want to contact us, all the information are given right here. You can also join our Telegram channel. I will be uploading the PPT, the same pointers which we have discussed, onto the channel. There you will have that benefit of downloading it, reading it afterwards. It will help you in retention.